खुशियां सब पूरियां हो रहियां मेरी खुशी नाल सब खुशियां सब पूरियां हो रहियां मैं तेल अंगूरा दी तुसी हो मेरियां टाणियां मैं तेल अंगूरा दी तुसी हो मेरियां टाणियां पिता भगवान अपना करे ओ निगाह पिता भगवान अपना करे ओ निगाह हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਾਖਲਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਟਰੂ ਵਾਈਨ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਖਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਲਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਜੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਪਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੜ ਰਚੇਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਹਿਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋਇਲ ਵਿੱਚ 2:25 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਨਵਾਂ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੁਣ ਫਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। हालेलुया हालेलुया बेटा, हालेलुया हालेलुया बेटा। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम
जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जाने बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जाने बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों में चल कर रोई ना पाता है, तेरे लहू से, खुदा के लहू से, तेरे लहू से, खुदा के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजाजत कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजाजत कमाल है, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशुआ मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, यीशुआ मेरे जीवन का
मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। सच्ची सच में हमारे जीवन को प्रभु ही बदल सकता है। और प्रभु की स्तुति और आराधना हो। सभी को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे और प्रभु आशीष और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे एंजल्स को और सारी बहनों को, सब बच्चियों को इस प्यारे आत्मिक गीत के लिए। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु के पवित्र वचन की प्रार्थना में जाते हैं और प्रभु से हम लगातार कंटिन्यू सीखेंगे कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने अपना पवित्र कार्य किया मनुष्यों के साथ। और उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे साथ हमारे भाई किशन हैं। और भाई किशन जो हैं हमारे साथ, हमारे भाई, वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसविंदर जी। आमीन। सारे भाई आमीन। आइए हम प्रभु की जीवित हुजरी में सरों को झुका करके प्रभु से अर्ज विनती करते हैं कि वो हमसे बातचीत करें। आइए हृदय को नम्र करके उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवादी पिता प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था, जो है और जो होने वाला है, जो युगानुयुग एक समान का है, उस प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद के साथ में प्रभु मैं आपके समीप आता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। जी प्रभु महान धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु आप धन्यवादी हैं प्रभु। आपने हमें अनुग्रह किया प्रभु, दया कृपा करी प्रभु, और आज का दिन सिरजा और आज का दिन हमारे जीवन में एक दिन बढ़ा दिए कि प्रभु हम आपके समीप आ सके और आपसे सीख सके। जी प्रभु, आज के ये दिन देखने की लालसा करते हुए कितने इस संसार से चल बसे प्रभु, पर आपका अनुग्रह, आपका दया और आपकी कृपा हम पर बनी है कि हम आपके समीप आकर के आपके महान उस आत्मिक वचन जो कि हमारे लिए अनंत जीवन है उसको सुन सके। और हम उस मार्ग में सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम उस मार्ग में वचन अनुसार, आपकी मर्जी अनुसार, आपकी वचन अनुसार चलने वाले हो सके। जी प्रभु, हमें सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। हमारे समझ को खोलने वाले आप है प्रभु। जी प्रभु, हमारे समझ को खोलना कि प्रभु हम आपकी जो वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसको हम हृदय की गहराई में रख सके और वचन अनुसार, उस वचन अनुसार, वचन को, हर एक वचन को आमीन करके वचन अनुसार चल सके। समझ को खोल देना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। पवित्र आत्मा से प्रकाशन कर देना प्रभु, लीड और गाइड करना प्रभु हमें कि हम आपके सत्यता वाली, जी प्रभु, सत्य सिर्फ आपका वचन है। आपका वचन ही वचन में आया है कि वचन के द्वारा इन्हें शुद्ध पवित्र कर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। जी प्रभु, सत्य सिर्फ आपका वचन है प्रभु। उसी सत्य के वचन से हमें पवित्र करना प्रभु कि हम निष्कलंक, दाग रहित, ब्लेमलेस हो प्रभु, झुर्री रहित हम पाए जा सके आपके आमद में। जी प्रभु, तैयारी वाला वो आत्मा देना प्रभु, हमें प्रार्थना वाला हृदय देना, मन आत्मा देना कि प्रभु हम निरंतर प्रार्थना में चल सके। पवित्र आत्मा से हमें लीड और गाइड करना कि प्रभु हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके और स्वर्ग के राज्य के भागी हो सके। प्रभु हमारे विश्वासों को बढ़ा देना कि प्रभु हम अंत तक नम्र, विनम्र, आज्ञाकारी और हो प्रभु विश्वास में मजबूत पाए जा सके, ईमानदार पाए जा सके। सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना। जी प्रभु, जिस भाई को, जिस बर्तन को जो आप
महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रभु। उस भाई को, प्यारे भाई को, भाई जसविंदर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वो आपका चुना हुआ दास सेवक है प्रभु। भाई को सामर्थ्य से भर देना, आशीष से भर देना प्रभु। भाई की जो भी जरूरत है, घटी कमी है, वो मैं नहीं जानता प्रभु, आप जानते हैं, क्योंकि आप हमारे दिलो गुर्दों को जानते हैं। आप हमारे घटी कमी को जानते हैं प्रभु। आप हमारे योग्यता को जानते हैं प्रभु। सामर्थ्य प्रभु, भाई को सामर्थ्य से भर देना, सहायता मदद करना। जो भी सांसारिक, दुनियावी और आत्मिक जरूरत है उसको आप पूरा कर देना प्रभु। जो भाई के घराने को ब्लेस्ड करना, आशीष से भर देना प्रभु, जिससे कि वो आपका दास आपको महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद कर सके। सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। हम सुनने वाले को सुनने वाले कान देना प्रभु। स्टोर करने वाले वो नम्र हृदय देना प्रभु, और वो समझ देना कि हम सुने हुए वचन अनुसार जीने वाले हो सके। जी प्रभु, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था प्रभु, वैसे ही सेम वचन उनको भी सुनाया गया था, पर सुनने वालों को हृदय में विश्वास के साथ में नहीं बैठा प्रभु, इसीलिए उनके लिए वो वचन कोई काम नहीं किया प्रभु। हम वैसे ना होने पाए प्रभु। हम जो वचन सुने वो हमारे हृदय में विश्वास के साथ में मेल खाए और बैठ जाए, मिक्स हो जाए, जिससे कि हम उस वचन अनुसार विश्वास में स्थिर होकर के चल सके। हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। जी प्रभु, हमारे बीच में जो भी उपस्थित है और आज उपस्थित नहीं हो पाए, उन सबको आशीषित कर देना प्रभु, जिससे कि हम एक मन एक चित्त होकर के आपकी उस मसीह के देह में गठ सके। सहायता मदद करना प्रभु, अनुग्रह कृपा कर, दया कृपा करना। ओ प्रभु महान, दया कृपा कर, हम पर आपका अनुग्रह बना के रखना प्रभु। जी प्रभु महान, आपकी कृपा दृष्टि में चलाना। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जी प्रभु, हमारे तैयारी वाला, वचन से भरी पूरी वाला, तैयारी वाला आत्मा बख्श देना प्रभु, कि हम आपके आमद में तैयार पाए जा सके। सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, कमिंग आवर आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ, आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु, सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र और मीठी जलाली नाम, आमीन। आमीन। भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। फिर से प्यारी आत्मिक प्रार्थना के लिए, और हम प्रभु के पवित्र वचन में जाते हैं। और जिस तरह प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से हम प्रभु के पवित्र कलाम को हम सीख रहे थे कि किस तरह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा जिर्रे, योशुआ, कदूस, एल और एलोहिम, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह संसार को रचा, फरिश्तों को रचा, और किस तरह एक फरिश्ता प्रभु के खिलाफ बगावत पे आया, और किस तरह वो लूसीफर इबलिस बना, और उसने सारे परमेश्वर की सारी रचना को ख़राब किया। तो हम ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से सीख रहे थे और आगे बढ़ रहे हैं। और हमने सीखा कि प्रभु परमेश्वर ने किस तरह अपना जो वचन था वो लिखती रूप में लिखकर अपने दासों को दिया, और फिर प्रभु के दासों ने प्रभु का वचन पाकर उसे लिखकर उसे उस संदूक के अंदर रखा जाता। और फिर हमने ये भी सीखा कि किस तरह यहूदियों ने पहले एक तंबू, टेंट बनाया। उसके बाद दाऊद ने परमेश्वर के लिए पक्का भवन सोचा, एक पक्का हैकल सोचा, यानी पक्का चर्च सोचा। और प्रभु ने उसके बेटे सुलेमान से अपने लिए वो घर बनवाया। ज़मीन कैसे आई, हमने ये भी सीखा कि वो फ्री में नहीं ली थी, ना ही कोई कब्जा किया था। प्रभु के दास दाऊद ने उसे मूल्य देकर खरीदा और उस पर प्रभु का भवन बनाने का फैसला किया। उसे वो फ्री में भी दे रहा था जो जगह का मालिक था, लेकिन दाऊद ने कहा, मैं सेत मेत में ये ज़मीन नहीं लूँगा, प्रभु के लिए मैं सेत मेत में लेकर प्रभु को नहीं चढ़ाऊँगा। फिर हमें ये सीखने को मिला कि प्रभु का घर जो होता है वो हम किसी कब्जे वाली जगह पर
किसी भाई को लूट कर, किसी भी भाई बहन को लूट कर उसके प्रभु को वो चीज़ नहीं चढ़ा सकते। प्रभु उन चीज़ों को कबूल नहीं करता। फिर हमने सीखा कि किस तरह सुलेमान ने भवन बनाया और सुलेमान ने परमेश्वर के संदूक को सबसे अति पवित्र जगह पे रखा। फिर उसके लिए उसने सुलेमान ने प्रार्थना की और हमने देखा कि प्रभु का भी उत्तर आया। प्रभु ने भी वादा किया कि जो कोई भी इस मंदिर के अंदर प्रार्थना करेगा, जो मुंह इसकी ओर मुंह करके भी प्रार्थना करेगा, मैं वहाँ उतर आऊँगा, मैं प्रार्थना सुन लूँगा और मैं मौजूद रहूँगा। और हमने ये भी देखा कि जो सेवक प्रभु ने अपने लिए चुने हुए थे, जिनको सेवा दी थी प्रभु की स्तुति करने की, साज बजाने की, प्रभु के लिए गीत गाने की, तो हमने देखा कि जब उन्होंने प्रभु की स्तुति शुरू की, प्रभु के लिए साज बजाए, एक स्वर में जब गाया, तो प्रभु की शकीना ग्लोरी, लिखा है शकीना ग्लोरी, प्रभु की उस मंदिर के अंदर भर गई। तो प्रभु के लिए जब हम एक स्वर से, एक ईमान विश्वास से प्रभु के लिए गाते हैं, तो प्रभु का आत्मा उतरता है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर का जो लिखा हुआ वचन और वो संदूक, वो एक पक्के घर में, भवन में, जिसे मंदिर बोले, हैकल बोला जाता था, वहाँ रख दिया गया। तो परमेश्वर के लिए एक पक्का भवन बना दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है? सुलेमान अपने आखिरी दिनों में गुनाहों में चला जाता है, लेकिन प्रभु ने जो दाऊद से वादा किया था, प्रभु उस वादे के कारण सुलेमान पर फिर भी दया कृपा रखता है। और सुलेमान के बाद जो इज़राइल है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये सुलेमान के बाद होता है कि हम देखते हैं कि इज़राइल भी जो है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ इज़राइल, दूसरी तरफ यहूदा हो जाता है। तो इज़राइल के दो हिस्से हो जाते हैं और इज़राइल के दो राजा बन जाते हैं। तो फिर भी परमेश्वर उनके साथ रहता है। अब जब उसके बाद वाले राजा आते हैं, वो हम देखते हैं कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बुरे आ जाते हैं। अब हमें जाना पड़ेगा यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 20 अध्याय में। अब समय आ गया है यिर्मयाह नबी का, और उस वक्त इज़राइल का घराना प्रभु परमेश्वर से बहुत दूर हो गया। लोग परमेश्वर के पीछे चलना हट गए, इज़राइली दुष्टता में पड़ गए, और राजा भी जो थे वो भी परमेश्वर के खिलाफ पाप और गुनाह करने लग गए। तो परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह नबी को चुना और उसे अपना वचन दिया, और प्रभु ने कहा जाके मेरा वचन उन्हें सुना। अब 20 अध्याय में देखें आप यिर्मयाह नबी और उसका 20 अध्याय। प्रभु का वचन पाए हुए यिर्मयाह नबी, जैसा उसका चुनाव हुआ हम जानते हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने इसे अपना वचन दिया। 20 अध्याय में पढ़ रहा हूँ। जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था, तो इमेर का पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान और रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास था। यिर्मयाह प्रभु का वचन लेके जाता है, प्रभु का वचन बताता है, पर उसके बदले में उसके साथ सलूक क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं
कि इमेर का पुत्र पशूर ने जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, यानी ये इंसान कोई आम इजरायली नहीं है। ये इंसान कौन है? एक तो याजक है, सेवक है, और यहोवा के भवन का प्रधान है। यानी ये खुद जो है ये भवन का प्रधान है, रखवाला है, यानी ये खुद एक प्रभु का सेवक और दास है। और किसी दूसरे ने नहीं, अन्य जातियों ने नहीं यिर्मयाह के साथ बुरा सलूक किया। खुद जो अपने आप को याजक कहलाते हैं, जो याजक है परमेश्वर के, उन्होंने यिर्मयाह के साथ बुरा सलूक किया। तो यानी सच्चे सेवकों के साथ, सच्चे ईमानदारों के साथ बुरा सलूक बाहर से नहीं होता। इतना होता है, पर इतना नहीं होता जितना अपनों से होता है, जितना अपने ही घराने के लोग दुख देते हैं। यिर्मयाह नबी को किसने मारा? जो उस परमेश्वर के भवन का प्रधान और याजक था, उसने मारा। और जबकि यिर्मयाह एक सच्चा भविष्यद्वक्ता और ये वाला झूठा बंदा, और आज भी ये चल रहा है। एक तरफ परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, सच्चे लोग हैं, एक तरफ झूठे लोग हैं, और हमेशा ही झूठे सताते हैं। परमेश्वर का बंदा कभी भी हाथ नहीं उठाएगा, ना बुरा बोलेगा। इसने हाथ उठाया और वो क्या किया? उसने काठ में डाल दिया। और आगे देखिए आप 4 आयत में, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों को बाबेल के राजा के वश में कर दूंगा। प्रभु परमेश्वर ने फिर क्या फैसला लिया कि मैं तुम लोगों को बेबीलोन के अधीन कर दूंगा, मैं तुम लोगों को बेबीलोन के राजा के अधीन कर दूंगा। जब परमेश्वर के सेवकों का अपमान होता है, जब परमेश्वर का भेजा हुआ वचन ठुकराया जाता है, तब क्या हो जाता है? इज़राइल गुलामी में चला जाता है, इज़राइल गुलाम हो जाता है, इज़राइल के दुश्मन तगड़े हो जाते हैं और इज़राइल कमज़ोर हो जाता है। और जब ये इज़राइली ईमानदार रहते थे, तो परमेश्वर इनकी ओर लड़ता था, वही दुश्मनों को हराता था, बाबिल जैसों को हराता था। लेकिन जब इज़राइली ऐसे पाप करते थे, तो परमेश्वर खुद ही इज़राइल को हरवा देता था। अब परमेश्वर का स्वभाव यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर जब तक हम परमेश्वर के वचन के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं, परमेश्वर के सेवकों की, परमेश्वर के दासों की इज्जत करते हैं, और परमेश्वर के सेवकों का भी हम ख्याल रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है, हमारे दुश्मनों से खुद लड़ता है, हमारे दुश्मनों का दुश्मन बन जाता है, हमारे विरोधियों से खुद लड़ता है, हमारे दुश्मनों को खुद वो साफ करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करते, उल्टा झूठे सेवकों को हम सुनते हैं, झूठे सेवकों की इज्जत करते हैं, जो पैसे के लालच में निकले हुए हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपनी जुबान पर खड़े नहीं रहते हैं और चाहते नहीं कि आप आत्मिक बढ़ें, अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरह का प्रयत्न करते हैं। अगर हम ऐसों की सुनते हैं, परमेश्वर का सच्चा सेवक सच्चा वचन ठुकराते हैं, तो हम सज़ा में चले जाते हैं। हमारी तरक्की नहीं होती, हमारी बर्बादी होती है अजीज़ों। और यहाँ पर परमेश्वर ने फिर फैसला किया कि मेरे सेवक को इन्होंने वचन तो नहीं सुना, उल्टा मेरे सेवक को इन्होंने मारा। और वो बना क्या हुआ था
परमेश्वर के भवन का याजक और प्रधान। प्रभु कहता अब तुम गुलामी में जाओगे, बेबीलोन की गुलामी में चले जाओगे। और मैं इस नगर का 5 अध्याय, मैं तलवार से मारे जाएंगे। मैं इस नगर को, सारे धन को और इसकी कमाई को, सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं को, जितना भी रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, परमेश्वर के सेवक को ठुकराते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन जिस सेवक के द्वारा भेजता है, वो वचन और सेवक भी इज्जत का हकदार है। लेकिन जब हम ठुकराते हैं, उल्टा ये जो याजक बना हुआ है नकली, ऐसा झूठा याजक, इसके पीछे लगते हैं, झूठे सेवकों के पीछे लगते हैं, तो आपकी कमाई आपकी जेब में नहीं रहती। आपका दिन रात मेहनत किया हुआ, दिन रात खून पसीने का किया हुआ धन आपकी जेब में नहीं रहेगा। कमाएंगे आप, खाएगा कोई और। कमाते आप हैं, जाएगा किसी और जेब में। यहाँ देख लीजिए, परमेश्वर ने बरकत छीन ली, शराब आ गया कमाइयों पर, और इनका जितना मर्जी धन इन्होंने इकट्ठा किया था, जो मर्जी करके, परमेश्वर कहता है सब मैं किसको दे दूंगा? बेबीलोन को, तुम्हारे दुश्मनों को दे दूंगा तुम्हारा धन। ऐसे होता है अजीजों, जब हम परमेश्वर को ठुकराते हैं तो हमारी कमाई हमारे दुश्मनों के पास चली जाती है। फिर परमेश्वर ही इजाज़त दे देता है, क्योंकि आज भी यही परमेश्वर है जिसको हम मानते हैं। इसीलिए अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, उसके कलाम वचन से प्रेम रखें, झूठे कलाम से दूर रहें, और जो सेवक प्रभु भेजता है उसे इज्जत करें, उसकी सुने, प्रभु के भेजे हुए की, ना कि अपनी मर्जी से पैसे कमाने के लिए जो निकले हुए हैं। नहीं तो हम आशीषें की बजाय शराब में चले जाएंगे। पता चल जाएगा कि आप किसके पीछे लगे थे, तो जेबें खाली हो गई। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारा धन जो है बेबीलोन लेके जाएगा और तुम सारे लूट लिए जाओगे। तो इतनी चेतावनी इनके लिए बहुत होनी चाहिए थी कि प्रभु नाराज हो गया है हमसे, नहीं हम तो बेबीलोन की गुलामी में चले जाएंगे। आओ इजराइलियों, घुटने टेकें, अपने पापों की माफ़ी मांगे, तौबा करे पापों को, और यिर्मयाह नबी से माफ़ी मांगे। यिर्मयाह नबी के साथ जो हमने सलूक किया है उसकी माफ़ी मांगे। यिर्मयाह नबी से भी माफ़ी मांगे कि जो हमने यिर्मयाह नबी के खिलाफ भी हमने बदतमीजी की, पाप किया, यिर्मयाह नबी को जो मारा कूटा, हम यिर्मयाह नबी से भी माफ़ी मांगे। तो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप देखें, दूसरे इतिहास में जाएं आपको अब पढ़ के ये लगेगा कि इतनी चेतावनी बहुत होती है एक इंसान के लिए, कि अगर आज हमें भी ऐसी चेतावनी मिल जाए कि प्रभु हमसे नाराज हो गया है, हमने प्रभु के कलाम को ठुकरा दिया, सच्चा चर्च ठुकरा दिया, सच्चा सेवक ठुकरा दिया, और हम सजा में चले जाएंगे, ये चेतावनी आ गई है। तो अगर हम भी माफ़ी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, तो प्रभु कितनी देर तरस खाता है। दूसरा इतिहास, अब उसके 36 अध्याय में जाएं। दूसरा इतिहास और उसके 36 अध्याय में 36 की 11 में पढ़े। दूसरा इतिहास और उसका 36 अध्याय उसकी 11 आयत से आप पढ़ें, 11 आयत से पढ़ें। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। 12 आयत, उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था,
हालांकि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था, तो भी वह उसके सामने दीन ना हुआ। ये जो राजा है, ये वही कार्य कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, पाप है, ये वही कर रहा है। लगातार कंटिन्यू पापों से तौबा नहीं कर रहा, पापों का अंगीकार नहीं कर रहा, दुष्टता पाप को छोड़ नहीं रहा, और बार बार चेतावनी मिलने पर भी ये छोड़ नहीं रहा पापों को। और परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा इसे चेतावनी भेजी, पर यिर्मयाह नबी के साथ क्या सलूक हुआ? उसे एक याजक ने, जो प्रधान था, उसने परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को उसने बहुत बुरे तरीके से मारा, बहुत बुरा सलूक किया, और परमेश्वर के वचन को उन्होंने ठुकरा दिया। अब आगे चलें आप। उसके बाद भी उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन नहीं किया, दीन नहीं किया। और देखें आप आगे 13 आयत। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने उससे बलवा किया, उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। और ज़्यादा दिल को सख्त कर लिया। कुछ लोग जिद्दी हो जाते हैं, पाप गुनाह करने के बाद जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी, वो झुकने को तैयार ही नहीं होते परमेश्वर के आगे। वो घमंड में इतने जिद्दी हो जाते हैं जैसा ये जिद्दी हो गया। 14 आयत देखें भाइयों बहनों, 14 आयत पढ़ें। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। उसके बाद राजा तो राजा, प्रजा भी, इजरायली ही नहीं, जो भवन के सेवक थे, जो भवन के दास थे, जो भवन में उस परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाले थे, जो याजक थे, वो सारे के सारे अन्य जातियों जैसे दुष्टता और पाप करने लगे। अब यहाँ आप देखें, दुष्टता पाप कौन कर रहा है? अकेला राजा नहीं, राजा भी कर रहा, प्रजा भी कर रही है, और जो सेवक हैं वो भी कर रहे हैं। सेवक, कलीसिया और प्रधान सब के सब पापों में पड़ गए, दुष्टता में पड़ गए। धर्मी बचा कौन? धर्मी कोई बचा ही नहीं। देखिए आप, सारे के सारे पापों में पड़ गए, दुष्टता में। और देखिए, और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। आपने पढ़ा, इन सब ने मिलकर परमेश्वर के भवन को, और भवन क्या था, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर का भवन क्या था? परमेश्वर का भवन पवित्र था, पवित्र था। परमेश्वर का भवन पवित्र क्यों था? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, जो दाऊद ने सोचा, सुलेमान ने बनाया, और सुलेमान की प्रार्थना के कारण परमेश्वर का शकीना ग्लोरी उतरा। वहाँ परमेश्वर ने वादा किया था, मैं इसमें मौजूद रहूँगा। वो पवित्र था। पर इन लोगों ने क्या किया? अकेले राजा ने नहीं, सारे के सारे इस्राएलियों ने, सारे याजकों ने, किसी ने कोई गुनाह की कसर नहीं छोड़ी। सबने दुष्टता करके, पाप करके परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया, पवित्र को। अब देखिए परमेश्वर कितना बर्दाश्त करेगा। 15 आयत देखें आप। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने
बड़ा यत्न करके, ये आयत आप पूरे ध्यान से बाद में भी पढ़ना, ये बाद में भी पढ़ना अगर आप सुन रहे हैं इस वक्त। 15 आयत, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। उसके बाद भी परमेश्वर ने अपने सेवकों को, अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा इनके पास, तौबा का सुसमाचार लेकर, तौबा का वचन लेकर कि तौबा करो, मत करो ये पाप, मत करो ये दुष्टता। ये ऐसा प्रभु क्यों कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा पर तरस खाता था। प्रभु नहीं चाहता था, प्रभु की ये पहली इच्छा नहीं थी कि अपने लोगों को गुलामी में भेजे। वो नहीं चाहता था कि मेरे लोग सजा खाएं। परमेश्वर को शौक नहीं है कि अपने बच्चों को दुख दे। ये परमेश्वर का कोई शौक नहीं है कि वो अपने बच्चों को दुख दे। ये हम ही होते हैं जो पूरे जिद्दी बन के दुख लेते हैं। ये हम होते हैं जो जिद्दी बन जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, जो मुड़ना चाहते ही नहीं, हलीम होना चाहते ही नहीं है, घमंड अकड़ से। हम ही होते हैं जो खुद सजा लेते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता किसी बच्चे को सजा देना। यहाँ लिखा है कि वो अपने प्रजा पर तरस खाता था, वो नहीं चाह रहा था, वो बार बार मौका दे रहा था। वो नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो, वो दुष्ट के भी मरने से खुश नहीं होता, लेकिन वो चाहता था कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन उस अवसर को लोगों ने देखिए नहीं पहचाना। 16 आयत, परंतु वह परमेश्वर के दूतों का उपहास उड़ाते। देखिए अब प्रभु उनको बार बार तरस खाकर मौका दे रहा है, समय दे रहा है, अवसर दे रहा है तौबा का, लेकिन वो परमेश्वर के सेवकों का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, ठट्ठा करते थे और उसके वचनों को तुच्छ जानते थे। देखा प्रभु का सबर, पर कितनी देर उसके सेवकों का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद उसके वचनों को तुच्छ जाना। आज आपने देखा, मैंने देखा है अपनी सेवकाई में, बहुतों को मैंने वचन दिया, मेरा जब मजाक उड़ाया तो मुझे इसका कोई दुख नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। लेकिन मेरे पास जो वचन है वो परमेश्वर का वचन है। और जब लोगों ने इस मैसेज को, इस सच्चाई को लोगों ने ठुकराया, तुच्छ जाना, प्रभु परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ा और इन्होंने भी प्रभु के सेवक का, प्रभु के संदेश को तुच्छ जाना। प्रभु के वचन जो कि पवित्र है, किस वचन को इन्होंने तुच्छ जाना? जिस वचन को अगर कोई छू लेता था मारा जाता था, उस वचन को इन्होंने तुच्छ जाना और उसके नबियों की हंसी करते थे, उसके नबियों की हंसी करते थे। एक नहीं, अकेला याजकों की बात नहीं, यहाँ तो प्रजा भी, राजा भी और याजक भी सब के सब दुष्ट हो गए हैं। अब इसके बाद क्या नतीजे आएंगे बताएं, आप ही बताएं, क्या नतीजे आएंगे इसके बाद? क्या बरकतें आएंगी इसके बाद? आए आप आगे पढ़ लें, और मुझे उम्मीद है आप सब ने अपनी बाइबलें खोली हुई है और आप उंगली रखें आगे देखिए, हालात बदल गए। फिर अब टर्निंग पॉइंट आ गया, रोशनी से अब अंधेरा आ रहा है, दया से श्राप आ रहा है, प्रेम की जगह क्रोध आ रहा है। फिर इंसान के हालात बदल जाते हैं। लिखा है, अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा
ऐसा झुंझला उठा। अब देखिए वो कैसा झुंझलाया, देखिए कि बचने का, ध्यान से सुनिए, पढ़िए भी साथ में, कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। हम बस ये ना कर दें कि हमारा बचने का फिर कोई उपाय ना रहे, ऐसी लिमिट क्रॉस ना कर दें कि वापस आने का फिर रास्ता ना हो। इनका बचने का कोई भी उपाय नहीं रहा। इन्होंने गुनाहों की, दुष्टता की वो सीमा पार की कि इनका बचने का उपाय नहीं रहा। गुनाह तो करना ही नहीं चाहिए, दुष्टता तो होनी ही नहीं चाहिए, सीमा तो बहुत दूर की बात है, बचने का कोई उपाय नहीं रहा। अब आगे फिर देखिए, जो पूरे ऐशो आराम कर रहे हैं इजरायली, दिन रात दाख रस पी रहे हैं, मतवाले हो रखे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, ऐशो आराम कर रहे हैं इजरायली जो। अब देखिए 17 आयत, तब उसने उन कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। किसने? खुद परमेश्वर ने दुश्मन को, इजराइली के दुश्मनों को ताकत दी और खुद इजराइलियों के दुश्मनों से इजराइलियों पर चढ़ाई करवा दी। अब देखिए इजराइलियों का परमेश्वर रखवाला, लेकिन जब परमेश्वर ही मानने पर आ जाए, जिस तरह एली ने कहा, एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य के खिलाफ पाप करेगा तो यहोवा माफ करेगा, लेकिन जो कोई यहोवा के खिलाफ गुनाह करेगा उसका पाप कौन माफ करेगा? और फिर क्या होता है, हमारे दुश्मनों को प्रभु ताकत दे देता है। जो दुश्मन हमसे डर के रहते थे, फिर वो हमें डराएंगे। जिनको हम पैसे देते थे, हम उनसे पकड़ेंगे। प्रभु ने ही भाई दुश्मन देश के राजा को ताकत दी और उससे चढ़ाई करवा दी, और उसने उनके जवानों को और उनके पवित्र भवन ही में मारा। अब ध्यान से पढ़ा आपने और सुना, कितनी इजाजत दी परमेश्वर ने, कितनी। दुश्मनों ने एक तो इजराइलियों को मारा, और उनके पवित्र भवन में, जिस भवन पर वो घमंड कर रहे थे, लेकिन ये भवन पर घमंड कब तक काम करेगा? जब आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तब परमेश्वर के भवन का घमंड काम करेगा। लेकिन इधर तो परमेश्वर को नाराज कर दिया, तो परमेश्वर ने भी कितनी इजाजत दी दुश्मनों को। दुश्मनों ने भवन में घुसकर, परमेश्वर के भवन में घुसकर, जो सुलेमान ने बनाया था, जिसमें परमेश्वर कहता मैं मौजूद रहूंगा, दुश्मनों ने उसके अंदर घुसकर याजकों को सबको मारा, जिन्होंने परमेश्वर का ठट्ठा और मजाक उड़ाया। परमेश्वर ने फिर इजाजत दे दी। इसमें परमेश्वर क्या कसूरवार है? जी बिल्कुल नहीं, परमेश्वर बिल्कुल न्यायी है, धर्मी है। ये इन्होंने ही ऐसा करने पर मजबूर किया प्रभु को। और देखो, उनके पवित्र भवन में ही तलवार से मारा, कोई नहीं बख्शा जी। क्या जवान, क्या कुंवारा, क्या बूढ़ा, क्या पके बाल, किसी पर भी कोमलता नहीं की, किसी पर भी कोमलता नहीं की। यहोवा ने सभी को उनके हाथ में कर दिया। प्रभु ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दुश्मनों को पूरी छूट दे दी कि तुमने जो करना है करो। जब तक परमेश्वर का हाथ इजराइलियों के ऊपर था, इजराइली सुरक्षित। जिस दिन प्रभु ने पीछे खींचा हाथ, ये हाल हो गया।
19 आयत, कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया। परमेश्वर का भवन फूंक दिया, आप सही सुन रहे हैं, हैकल को फूंक दिया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया। यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला, आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसका सारा बहुमूल्य सामान, सारा पवित्र सामान को नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया। बेबीलोन उन्हें बंदी बनाकर अपने देश में ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वह उसके बेटों और पोतों के अधीन रहे। इक्कीस आयत, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था। कौन सा यिर्मयाह? वही यिर्मयाह जिसको इन लोगों ने मारा था, पीटा था। फिर उसके मुंह से ये वचन निकला था कि वो पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसे विश्राम मिला। 70 वर्ष के पूरे होने तक विश्राम मिला। तो यहाँ पर वो प्रभु का वचन का संदूक, वो परमेश्वर का भवन फूंक दिया गया। परमेश्वर का कीमती सामान उठाकर ये कसदी ले गए, बेबीलोन के राज्य में चला गया। परमेश्वर का सारा पवित्र शुद्ध सामान चला गया बेबीलोन के समय में। अब आपको फिर याद आया होगा दानियल के समय में, जब वो राजा शराब पीने लगा, इन पवित्र बर्तनों में शराब पीने लगा, तो एक हाथ हवा में आया जिसने लिखा, मन्ने मन्ने तकेल उपरासीन। वो राजा इन्हीं बर्तनों पर शराब पी रहा था। फिर उसने हवा में एक हाथ आता देखा जिसने लिखा, मन्ने मन्ने तकेल उपरासीन। उसके बाद वो बहुत बोझ में, टेंशन में चला गया कि इसका मतलब क्या, कोई भी ना बता पाया। पर उस समय कौन था? प्रभु का जन दानियल। दानियल को बुलाया गया। फिर दानियल ने उसका अर्थ बताया कि परमेश्वर ने तुझे तकड़ी में तोला और तेरा गुनाह बहुत ज़्यादा निकला। ये वही बर्तन थे जो उधर चले गए, इजरायली गुलामी में चले गए। ये प्रजा जो मिस्र देश से गुलामी से निकली थी 400 सालों बाद, इजराइल में पहुंची थी। इजराइल में फल रही थी, फूल रही थी, बढ़ रही थी, तरक्कियां कर रहे थे, बरकतें पा रहे थे, बड़ी आनंद वाली, शांति वाली और बरकतों वाला जीवन जी रहे थे ये। लेकिन ये उसमें इतना गुम हो गए, ये प्रभु से दूर होते गए। प्रभु के साथ बने रहने की बजाय ये प्रभु से दूर होते गए और परमेश्वर से इतनी दूर हो गए कि इन्होंने प्रभु को ठुकरा दिया, परमेश्वर को ठुकरा दिया, परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया और प्रभु परमेश्वर के सेवकों को ठुकरा दिया। पर प्रभु ने फिर भी प्रभु को क्या याद था कि ये कौन है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का वंश है ये लोग अब्राहम का वंश है। और प्रभु ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। और परमेश्वर अपने वादों पर खड़ा रहता है। इतनी दुष्टता की इन्होंने, इतनी दुष्टता देखिए आप। प्रभु नाराज भी हो गया, प्रभु ने सजा भी दे दी, लेकिन प्रभु को क्या याद था?
अब्राहम के साथ किया हुआ वादा याद था। और उसी के कारण आप यहाँ आगे देखें, इसलिए जब तक 21 आयत जब आगे पढ़ते हैं, इसलिए जब तक सुना 70 वर्ष के पूरे होने तक विश्राम मिलेगा। 22 आयत में देखें, ये किंग साइरस है। जब राज्य आया, किसका आया? बेबीलोन के बाद बेबीलोन का राज्य किसने हराया था? बेबीलोन के बाद राज्य किसका आया था संसार में? अगर आपको याद होगा, जो सर था वो बेबीलोन था, जो बाजू थे वो क्या थे? मादी और फारसी। यानी बेबीलोन के समय में ये गुलामी में चले गए। पर कितने साल प्रभु ने इन्हें गुलामी में रखना था? 70 साल। 70 साल प्रभु ने इन्हें गुलामी में रखना था। अब 70 साल बाद फिर प्रभु ने वादा किया था कि 70 साल बाद मैं इन्हें गुलामी से निकालूंगा। अब प्रभु परमेश्वर अपने वादों पर खड़ा रहता है। अगर उसने अब्राहम को कहा था कि मैं 400 साल तेरी प्रजा गुलाम रहेगी, 400 साल बाद मैं निकाल लूंगा, प्रभु ने निकाला। अब दोबारा से इनको कितने साल की सजा मिली है? 70 साल की। अब इसको फिर से प्रभु निकालेगा, इसको हमको गुलामी से, क्योंकि प्रभु तरस खाने वाला प्रभु, इन पर तरस खाने वाला। और जब दानियल ये किताब पढ़ रहा था, दानियल, तो दानियल ने जब ये किताब पढ़ी, जब आप दानियल की किताब में जाते हैं तो आप देखें, दानियल ने जब ये किताब पढ़ी तो दानियल को पढ़कर परमेश्वर ने उसकी समझ खोल दी। आप दानियल की किताब पे आई जाएं, फिर आपको आसानी होगी ये सारी तस्वीर को समझने में। दानियल की किताब 9 दानियल की किताब उसका 9। तो दानियल ने 9 की 1 पढ़े, दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1। दानियल यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ रहा था। तो क्योंकि एक ईमानदार विश्वासी हमेशा से प्रभु का वचन पढ़ता है, जो भी विश्वासी था वो प्रभु का वचन पढ़ता था। आज भी विश्वासी प्रभु का वचन पढ़ते हैं। तो यहाँ दानियल भी जो था, यिर्मयाह की किताब जो हमने इतिहास की किताब पढ़ी, तो दानियल भी पढ़ रहा था। तो दानियल ने भी जब ये पढ़ा कि 70 वर्ष तक ये श्राप मिला गुलामी का, 70 वर्षों बाद प्रभु इजराइलियों को गुलामी से निकालेगा। अब दानियल ने पढ़ा, दानियल 9 उसका 1। मादी शरेक्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर उनका राजा ठहराया गया था, 2 आयत, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। अब वो कैसे समझा? शास्त्र के द्वारा। शास्त्र क्या है? पवित्र बाइबल। उसको कैसे समझ में आया? पवित्र शास्त्र के द्वारा। आपको, मेरे को कैसे समझ आएगा? पवित्र शास्त्र के द्वारा। दानियल कहता, मैंने पवित्र शास्त्र के द्वारा समझ लिया। मैंने भी पवित्र शास्त्र यानी बाइबल के द्वारा समझ लिया। तो पवित्र शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने बाद, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो दानियल ने भविष्यवाणी में पढ़ा कि 70 साल बाद हमने आज़ाद होना। दानियल ने जब काउंटिंग की तो उसको पता चला कि हम तो आज़ाद होने वाले हैं।
तो ये प्रकाशन दानियल पर खुल गया। अब दानियल पर क्यों खुला? क्योंकि दानियल प्रभु का वचन पढ़ता था, इसलिए उस पर यह प्रकाशन खुल गया कि हम आज़ाद होने वाले हैं। अब फिर से, अब प्रभु के लोग जब भी सुनते थे कि बड़ी बरकत आने वाली है, तो वो आज के लोगों की तरह संसारिक जश्न नहीं मनाते थे, संसारिक पार्टियां नहीं करते थे। तो दानियल ने क्या किया? दानियल कहता, मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। अब देखिए, अब यहाँ पर भी दानियल को पता चल रहा है कि हम आज़ाद होने वाले हैं, तो वो यहाँ जश्न पार्टियां नहीं मना रहा, वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना में उतर गया। ये है सच्चे मसीही। प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। और हमारे लोग तो उसी वक्त बुक करते हैं पार्टियां, जश्न मनाने को। जब ज़रूरत होती है तब दिन रात प्रार्थनाएं करें, हमारे लिए प्रार्थनाएं करें प्लीज़। और जब उनका काम हो जाता है तो जिनको उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला होता, उन्हें बताते भी नहीं हैं कि प्रभु ने हमारी सुन ली है, काम हो गया। उस वक्त वो अपने संसारिक मित्रों को, रिश्तेदारों को बुला के पार्टियां करते हैं। लेकिन प्रभु का ये बंदा उल्टा फास्टिंग में चला गया, उपवास में चला गया, जबकि संसारिक सोच के मुताबिक इसे तो जश्न मनाना चाहिए। बाहर आके जो शोर मचा दे इजरायलियों को कि हम आज़ाद होने वाले हैं, खोलो आज पार्टियां शुरू करो, आज जश्न मनाओ। नहीं, हमें प्रभु ने संसार से चुन लिया है, अब हम संसार के लोग नहीं हैं। दानियल उपवास में चला गया, टाट पहना, राख में बैठा, राख में बैठकर विनती करने लगा। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, महान और भय योग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। कहता, हमने तेरे साथ पाप किया, हमने तेरे साथ कुटिलता की, हमने बलवा किया, तेरे साथ दुष्टता की, हमने तेरे सेवकों को मारा, तेरे नबियों का अपमान किया, तेरे वचनों को तुच्छ जाना। हालांकि किया किसने था ये? इससे पहले वाले लोगों ने किया, इसने नहीं किया। लेकिन ये बंदा मान रहा है कि हम लोगों ने तेरे खिलाफ पाप किया, और जिन्होंने किया था वो मर आ गए। पर ये एक जिम्मेदारी थी इसकी कि इसने परमेश्वर के आगे उनके भी पापों को कबूल किया और अपने भी कबूल किया। तो इसकी प्रार्थना प्रभु ने आशीष दी, क्यों नहीं सुनेगा इसकी प्रार्थना? हुन 18 आयत में इसकी प्रार्थना में, इसने प्रार्थना में देखिए क्या बोला, और एक बाद में पूरी पढ़ लें। देखिए 18 आयत में, हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, इसलिए अपने धार्मिकता के कामों पर नहीं बल्कि तेरी बड़ी दया के ही कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हालेलुया। कहता तरस खा प्रभु, इसके कहने की जरूरत नहीं थी, प्रभु ने तो वैसे भी अपना वादा पूरा करना था, इसके कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक अच्छे विश्वासी और ईमानदार की ये पहचान है कि वो प्रभु के आगे माफ़ी मांग रहा है, और मांग रहा है कि तरस खा। कहता हमारे धार्मिक कामों पर नहीं, हमारे धार्मिक कामों पर नहीं, अच्छे कर्मों पर नहीं, बल्कि अपनी दया से। हालेलुया, कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर। 20 आयत में इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने अपने इजरायली जाति भाइयों के पापों का अंगीकार कर रहा था। यह अपने इजरायली भाइयों की, इजरायली कौम के पापों का भी मान रहा है। दूसरों के गुनाह
ये माफी मांग रहा है अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता, तो इसके सामने प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु का फरिश्ता आकर प्रकट हो गया। प्रभु का दूत, स्वर्गदूत इसके सामने प्रकट हो गया। और देखिए वो 22 आयत ने, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि प्रवीणता देने के लिए आया हूँ। 23 आयत, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा उसी समय आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू अति प्रिय ठहरा, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बातों का अर्थ जान ले। तो प्रभु परमेश्वर ने इसकी दुआ सुनी और कहता, अब मैं तुझे अर्थ बताने आया हूँ, दृष्टांतों का प्रकाशन बताने आया, जिन्हें तू समझ नहीं रहा वो बताने आया हूँ। और परमेश्वर ने इसको महान प्रकाशन दे दिया जिसकी इसको भी उम्मीद नहीं थी। इसी में प्रभु ने दुनिया का अंत भी दे दिया, अपनी आमद दे दी, आपका समय मेरा समय वो भी बता दिया। प्रभु ने कहा, तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह रखे हैं। 7 सप्ताहों पर नगर चौक के प्रभु ने 3 हिस्सों में बांट दिया। प्रभु ने कहा कि 62 हफ्तों के बाद ये जो है यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा। और प्रभु परमेश्वर ने कहा 7 सप्ताहों के बाद, प्रभु कहता है, जान ले यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा निकलने, अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौखाई समेत फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर पवित्र पुरुष काटा जाएगा। तो प्रभु परमेश्वर ने उसे वो दे दिया जो उसे भी नहीं ये पता था। अब ये 70 हफ्ते है क्या, इसका हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। ये 70 हफ्ते है क्या, हमें प्रभु ने हमें बताए हैं कि 70 हफ्ते क्या है। वो पवित्र पुरुष प्रभु यीशु मसीह था जो पैदा हुआ 463 तकरीबन साल बाद दोबारा से इज़राइल के यरूशलेम के बसने की आज्ञा निकली। तब 12 सप्ताह बीत गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सलीब पर टांगा गया। 62 और 7 69 वीक बीत गए। जब यीशु मसीह सलीब पर था उस वक्त यहूदियों के 69 वीक्स पूरे हो गए थे। पर 70 हफ्तों बाद प्रभु ने कहा हमेशा की शांति आएगी। 70 हफ्तों बाद, पर जब प्रभु यीशु सलीब पर था तब 69 वीक्स पूरे हो गए, लेकिन 70वां हफ्ता चढ़ा नहीं, यहूदियों का रुक गया। 1 हफ्ता यहूदियों का रुका हुआ है 7 साल का। और परमेश्वर ने कहा अब तुम सारे संसार में जाओ। तो 69 हफ्ते बाद परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ अन्य जातियों की ओर आ गया। कितने समय के लिए? 2 दिन के लिए। होशे नबी कहता, उसी ने मारा वही चंगा करेगा, उसने जख्म दिया मलहम वही लगाएगा, 2 दिनों बाद फिर हमें उठा लेगा। 2 दिन का मतलब 2000 साल बाद। यानी यहूदियों का 70वां हफ्ता भी पड़ा है। 69 और 70 हफ्तों के बीच ये 2 दिन के लिए प्रभु हमारे पास आया है, अन्य जातियों के पास। 2 दिन का मतलब 2000 साल। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आए अब 2000 साल हो गए हैं। यानी अब अनुग्रह, कृपा ये वापस यहूदियों के पास जानी है। अन्य जातियों का समय अब खत्म होने पर है। अन्य जातियों का समय खात्मे पर है। यहूदियों का समय शुरू होने वाला है और ये सलीब का समाचार उधर जाने को है। प्रभु 2 दिन के लिए हमारे पास आया। रोमन्स 9, 10, 11। क्या परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़ दिया? नहीं। उनका ठुकराया जाना अन्य जातियों के लिए बरकत का, आशीष का कारण हो गया। पर परमेश्वर हमेशा इजरायलियों से नाराज नहीं रहेगा। परमेश्वर वापस उनकी सुधि लेगा। जब ये 2 दिन पूरे हो जाएंगे, 2000 साल जो कि अब खात्मे पर हैं, प्रभु यीशु मसीह वापस यहूदियों के पास चला जाएगा। और 2 दिन, प्रभु ने इन 2 दिनों में 7 युग रखे हैं। 7 युग रखे हैं। खैर इसकी तो एक अलग से
स्टडी है जो आप लोगों ने पहले ही पाई हुई है। लेकिन प्रभु परमेश्वर देखिए, जो ये लोग गुलामी में चले गए, प्रभु ने वादा किया मैं इन्हें निकालूंगा। लेकिन आप देखें कि जो पर्शियन किंग है, पर्शियन किंग साइरस, उसका नाम है साइरस। इंग्लिश में उसका नाम साइरस आया है, हिंदी और पंजाबी की बाइबलों में खुसरू लिखा होगा। तो आप एजरा की किताब देखें, एजरा हुआ, नहमिया हुआ, ये किताबें जो हैं आपस में रिश्ता रखती हैं। इनके समय में यरूशलेम दोबारा रिस्टोर हुआ, परमेश्वर का भवन दोबारा रिबुल्ट हुआ। नहमिया ने को प्रभु ने इस्तेमाल किया। नहमिया राजा को शराब पिलाता था। नहमिया का एक दिन चेहरा बड़ा उदास था जब उसको खबर मिली कि यरूशलेम पड़ा हुआ है, शहरपनाह टूटी पड़ी, उसका मन बड़ा उदास हुआ। तो राजा ने पूछा किंग साइरस ने कि नहमिया तू उदास क्यों है? वो कहता राजा परमेश्वर का नगर कहता टूटा पड़ा है, परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा है। तो किंग साइरस ने हुक्म दिया कि नहमिया जो तुझे चाहिए वो ले जाके अपने परमेश्वर का भवन बना। अब एजरा की किताब में आप पढ़ेंगे, नहमिया की बाद में किताब में पढ़ेंगे, एजरा 1 में लिखा तो किंग साइरस कहता कि मुझे परमेश्वर ने मेरे मन को उभारा, मेरे मन में डाला कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं। किंग साइरस पर्शियन, अन्य जातियों का राजा, ये पर्शियन राजा है, ये गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि वो भवन बना। इसीलिए जब आप देखें हमारे समय में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये हुक्म किया कि अमेरिका की जो कैपिटल है एम्बेसी वो तेल अवीव में नहीं होगी, वो यरूशलेम में होगी। बाइबल के मुताबिक इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है। तो ट्रंप ने अमेरिका की एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट कर यरूशलेम में कर दी। बहुत दुनिया उस पर बोली, पर वो कहता परमेश्वर के वचन में, बाइबल में यरूशलेम है राजधानी। इस बात पर इजराइलियों ने खुश होकर एक सिक्का, एक कॉइन शुरू किया इजराइल में। उस एक सिक्के पर उन्होंने ट्रंप की तस्वीर छापी, दूसरे सिक्के पर किंग साइरस की छापी, और उन्होंने कहा जिस तरह पुराने समय में अन्य जातियों के राजे किंग साइरस ने हुक्म दिया था यरूशलेम बनाने का, उसी तरह हमारे समय में ये अन्य जाति क्रिश्चियन प्रेसिडेंट, अमेरिका का क्रिश्चियन प्रेसिडेंट, यहूदी नहीं है वो, उसने ऑर्डर दिया कि अमेरिका की एम्बेसी यरूशलेम में होगी, यरूशलेम राजधानी है। तो उन्होंने ट्रंप की तुलना किससे की? किंग साइरस से की। तो प्रभु का नाम को जलाल मिले, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो भवन बना, सुलेमान ने बनाया, परमेश्वर का वचन उसके अंदर रखा गया अति पवित्र जगह पर इजराइलियों ने पाप गुनाह की वो लिमिट क्रॉस की, परमेश्वर के सेवकों को मारा, पीटा, तुच्छ जाना प्रभु के वचन को। तो प्रभु परमेश्वर झुंझला उठा, क्योंकि यहूदियों ने बचने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने झुंझला कर, हर्ट होकर इन्हें गुलामी में भेज दिया और भवन टूट गया। अजीजों, परमेश्वर का पवित्र स्थान टूट गया। परमेश्वर के पवित्र सामान जो अंदर पड़ा था वो लूट के ले गए, सोने का सामान, पवित्र चीजें। 70 साल ये लोग गुलामी में रहे, लेकिन जब वो माफी मांगते, परमेश्वर की तरफ वापस आ जाते, गिड़गिड़ाते, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी, दया की खान उन्हें फिर से माफ कर देता, उन्हें फिर से बसा देता। और आप देखें
दानियल कैसे उसके आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, अपने पापों को मान रहा है। परमेश्वर कहता तेरी दुआ सुन ली है। और परमेश्वर फिर तरस खा के इन्हें आजाद करवा देता और इन्हें वापस से बरकतें दे देता, खुशियां दे देता, शांति दे देता। और एजरा के समय में वो भवन बनने को फिर शुरू हुआ। लेकिन नेहमिया उठा। नेहमिया जब गया बहुत सारी फौज लेकर, बहुत सारे मिस्त्रियों को लेकर, बहुत सारे लोग विरोध करने को आ गए कि ये भवन नहीं बनाने देंगे। तो नेहमिया को रुकावट आई। तो नेहमिया ने कहा, कहता एक हाथ में मिस्त्रियों तुम कांडी रखो, दूसरे हाथ में तलवार रखो। कहता परमेश्वर का भवन अब ऐसे ही बनेगा। तो भवन कैसे बना परमेश्वर का? दूसरी बार मिस्त्रियों के एक हाथ में कांडी होती थी और एक हाथ में तलवार होती थी। इस तरह शहरपनाह की मरम्मत हुई और प्रभु ने अपने लोगों को ब्लेस किया। दोबारा से यरूशलेम की शहरपनाह बनी, चार दीवारी बनी। तो हम इसको प्रभु के अनुग्रह से कल और डिटेल से जानेंगे। तो एजरा जी की किताब है जो, और नेहमिया की किताब है, इन दोनों का आपस में रिश्ता है। ये दोनों ही उस समय के नबी हुए जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया और इन्होंने परमेश्वर के उस भवन को बनाया। उसके बाद किंग साइरस भी चला जाता है, दूसरा राजा आता है। तो दूसरे राजा पता करता है कि पहले राजे ने सचमुच ऐसा हुक्म दिया। तो मंत्री अपने लाइब्रेरी में जाते हैं और पुराने राजे के सारे दस्तावेज निकालते हैं और वहाँ से वो दस्तावेज निकालते हैं जहाँ किंग साइरस ने हुक्म दिया था कि यहूदियों का राजभवन बनाया जाए, वो भवन बनाया जाए। तो अगले राजा ने किंग साइरस का वो हुक्म निकाला पुराना और उसने कहा हाँ ये आज्ञा दी थी हमारे पहले राजा ने, वो इज्जत करते थे। तो अगले राजा ने भी आके उसे कंटिन्यू किया। तो आप देखेंगे ये बड़ा परमेश्वर ने इन पर अजीबो गरीब तरीके से अनुग्रह किया हुआ है। और ये भवन बना कैसे दूसरी बार, इसको हम कल जानेंगे। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही शिक्षा वाली हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने की वो हम ना कर बैठे। तो ये सारा कुछ लिखवाने का, परमेश्वर का बताने का क्या मतलब है हमें? क्यों परमेश्वर ने ये सारा लिखवाया और बताया कि जो गलतियां उनसे हो गई और वो सजाओं में चले गए वो हम ना करें। अगर हम ये सुनकर जानकर भी गलतियां करते हैं तो फिर मत्ती 25 में जो प्रभु ने कहा है मूर्ख कुंवारियां, हम वो होंगे कि जानकर भी हमने मूर्खता की। लेकिन अजीज भाई बहनों, हम मूर्ख नहीं हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं प्रभु के, जो प्रभु का वचन सुनते ही नहीं उसको समझते हैं, उस पर चलते हैं। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए फिर से हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर और प्यारे पवित्र बाइबल, पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी आप बहुत ही प्यारे, अनुग्रहकारी, दया की खान, सर्वशक्तिमान, भय योग्य परमेश्वर, भस्म करने वाली आग, प्रेम करने वाले, जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। और जो लोग आपके वचन पर चलते हैं आप उन पर करुणा, दया, रहम, कृपा करते हैं। लेकिन जो आपके वचनों को तुच्छ जानते हैं उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। प्रभु हे प्रभु, हमने आज जो भी पढ़ा सुना हमारे लिए ये एक शिक्षा हो, एक चेतावनी हो, एक वार्निंग हो कि हम वो गलतियां हम ना करें, ताकि हम ना
कोई ऐसा पाप करें कि जो हमारे लिए भी बचाव का कोई रास्ता ना बचे। हे पिता, हम आपको खुश करने वाले हों, आपके आपके वचन की इज्जत करने वाले और आपके सेवकों की भी इज्जत करने वाले, आपके वचन को पवित्र जानने वाले हों, ताकि हम प्रभु जी आशीषों के भागी हों, बरकतों के भागी हों, क्योंकि हम बरकतों वाले हैं प्रभु, हम आशीषों वाले हैं प्रभु, हम श्रापित वाले नहीं हैं तेरी औलाद। हे प्रभु, हमारी मदद कर, जो हमसे नहीं हो सकता आपसे हो सकता है। प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे और हमारे तमाम रास्तों को खोल प्रभु। जो बंद पड़े रास्ते हैं आप अपने पवित्र जलाली नाम से, अपने पवित्र लहू से खोल दें प्रभु। आशीषों के सारे बोझ, सारे कर्ज हमसे दूर हों प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हमारे सभी के घरों में आनंद, खुशियाँ और बरकतें भर जाए, कोई चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि प्रभु हम आपके वचन को पवित्र जानने वाले लोग हैं। हम आपके दासों को इज्जत देते हैं प्रभु, और प्रभु हम आशीषों के भागी हैं प्रभु। और आज के कलाम के द्वारा हमें बहुत सारी बरकत आशीष दे, और हमारे सभी भाइयों बहनों को आशीष बरकत दे। जो आज नहीं आ पाए उनको भी बरकत दे, और जो इस संदेश को बाद में सुनेंगे उन्हें भी आशीष बरकत दे। और अपनी आमद के लिए हमें तैयार रखना प्रभु, जब भी तू आए हम तैयार पाए जाएं। सारी प्रार्थना मांगते हैं हम अपने, बल्कि सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। हम अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं।